Hello, good morning, students, and welcome back. So, today we are again going to continue with the chapter Algebraic Expression and Operations on them. So, student, I hope you will watch entire video carefully and try to solve it by yourself into the book. So, student, let's begin. Students, let us start with practice set 35 as we completed with the previous practice set. Student, in this practice set you are going to do the multiplication. Okay, multiplication. So first here you can see this is monomial multiplied by monomial. Okay, then this is also monomial multiplied by monomial. This is binomial. Okay, this is binomial multiplied by monomial, and here monomial with the binomial with binomial. Okay, so first we will multiply monomial with the monomial. Student, always remember, when you are multiplying monomial with the monomial, first multiply the coefficient. Okay, this is the coefficient, this number is coefficient. Okay, first multiply the coefficient along with the sign. Okay, along with the sign, and then multiply the variables. This is the variables x, y. Alphabet is variable. So let us solve now. See, the same question I had written here. So what you are going to do, as I told you, first multiply. See, first step, just expand this into x into y, then into 18 into x into y. Okay, you did this. Okay, now as I told you, first multiply the coefficient. Okay, this is the coefficient, 16 into 18, then this variables. Okay, x into y, or I will write the same terms together, same variables together, x. Okay, so x into x into y into y. So I hope till here you are clear. Now as you see, 16 into 18 is how much, student? Yes, 288. Okay, we got this 16 into 18, we did 288. Now see, 2x is there, so it will be x square. Okay, 2y is there, so it will be y square. Understood how to do? So this is your answer. Okay, students, I hope you understood this, how to solve. Okay, student, now let us do third sum. Second sum, see, again it is monomial with monomial. Same, the way we did this now, same way you are going to do this sum also. Okay, but the thing is, y you will write 2 times, y into y, and z you will write 2 times, z into z. Even here one more y is there, so y cube will be there in last. Okay, so now I will show you how to do binomial. Student, this is binomial. Okay, binomial with monomial. Okay, so let's see. Student, what you are going to do here, you are going to multiply this 4c with this 2. Okay, ये 4c को मल्टीप्लाई करना है ये दोनों के साथ में. ठीक है, देखो कैसे, 12a इंटू 4c. ठीक है, इसके साथ ये टर्म के साथ में आई हैड मल्टीप्लाइड दिस. अब बीच में साइन कौन सा है? प्लस, तो पुट हियर एडिशन साइन. ठीक है, नाउ रिमेनिंग इज 17b, तो यहाँ पे लिखो 17b इंटू 4c इंटू 4c. अंडरस्टूड फर्स्ट स्टेप. ये ब्रैकेट के जो दोनों टर्म हैं ये बाइनोमियल है. ठीक है, 2 टर्म है, ये दोनों टर्म को किससे मल्टीप्लाई करना है? मोनोमियल से. ओके, अंडरस्टूड दिस. नाउ नेक्स्ट स्टेप, सी हाउ टू डू. नाउ 12, जस्ट सेपरेट दिस, सेम एज यूजुअल जैसे हमने वहाँ पे किया था. 12 इंटू ए, यहाँ पे कुछ नहीं है बीच में, तो इसका मतलब होता है वहाँ मल्टीप्लीकेशन है. ओके, दिस इज ए. ओके, ए इंटू 4
इंटू सी प्लस देखो 17 इंटू बी, ये बी देख रहे हो ना, इंटू 4 इंटू सी। ठीक है, सबके बीच में हमने मल्टीप्लिकेशन डाला है, जहाँ पे दिस इज यहाँ पे कुछ नहीं है तो दैट मीन्स अ मल्टीप्लिकेशन। नाउ एज यूजुअल स्टूडेंट, जो कोएफिशिएंट है उसको साथ में लिखो, मतलब नंबर 12 कौन कौन से नंबर हैं, एज यू कैन सी 12 प्लस के पहले, ये प्लस के बाद वाला यू कैन नॉट राइट, ओके। सो 12 इंटू 4, ठीक है, 12 इंटू 4 इंटू ए इंटू सी, पुट अ प्लस साइन, ठीक है। 17 कोएफिशिएंट कौन सा है यहाँ पे, 17 और 4, सो यहाँ पे आएगा 4 इंटू बी इंटू सी। ये सबको समझा, ये सब साथ में नहीं मल्टीप्लाई कर सकते हो, ओके। ये 12 4 17 4 यू कैन नॉट डू मल्टीप्लीकेशन दिस ऑल टुगेदर। क्यों? क्योंकि बीच में क्या है, प्लस साइन है। व्हाट इज देयर, प्लस साइन। तो जो प्लस साइन के पहले वाले कोएफिशिएंट है वो साथ में लेना है, अंडरस्टूड। नाउ 12 4 इज हाउ मच स्टूडेंट, 48। सो 48 A and C, so A C plus put a plus sign, then 17 into 4 is how much student, is 68, okay, 68 B C, understood this, you understood, this is done. C 12A plus 17B into 4C, this is what it is called multiplying binomial, okay, this is binomial with monomial. First step what you will do, just multiply this 4c with both the terms, ठीक है। 12a इंटू 4c, फिर ये प्लस साइन इन बिटवीन, 17b इंटू 4c, ठीक है। देन जस्ट सेपरेट दिस, ओके। 12 इंटू a, देखो यहाँ पे इंटू a इंटू 4 इंटू सी प्लस 17 इंटू बी इंटू 4 इंटू सी, सबको सेपरेट करना है, ठीक है। अब क्या करना है, जो कोएफिशिएंट है, नंबर है, वो साथ में लिखना है, अल्फ़ाबेट साथ में लिखना है, लेकिन प्लस साइन के पहले वाला, ओके, एंड प्लस साइन के बाद वाला अगेन यू हैव टू डू द सेम थिंग, ठीक है। देखो 12 इंटू 4, ये 4 है ना, 4 इंटू ए इंटू सी प्लस 17 इंटू 4 इंटू बी इंटू सी। अब 12 4 48 ए सी प्लस 68 17 4 68 बी सी। स्टूडेंट नाउ दिस यू कैन नॉट ऐड, क्यों नहीं ऐड कर सकते, क्योंकि इसके वेरिएबल्स डिफरेंट है, ओके, सो वी कैन नॉट ऐड इट, तो यहाँ पे छोड़ देना है, लिव इट नाउ, दिस इज योर आंसर। आई होप दिस यू अंडरस्टूड नाउ। Students, now let us start with practice set 35 only, fourth sum, okay. Now we will do fourth sum, binomial with binomial, दोनों binomial है, ठीक है। Now see how to do. Student, इसमें क्या करना है, इसमें ये एक टर्म लेना है, इसको ये दोनों के साथ में मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। देखो कैसे, 4x लिखा, ठीक है, ये 4x लिखी, ये ब्रैकेट लिखो 9x प्लस 7y, ठीक है। अब यहाँ पे बीच में प्लस साइन है ना, पुट हियर प्लस साइन, और ये 5y और यहाँ पे फिर से ये वाला ब्रैकेट 9x प्लस 7y, समझा। ये पहले ये नंबर, फिर ये ब्रैकेट, मल्टीप्लाई, यहाँ पे कुछ नहीं साइन है, मतलब मल्टीप्लिकेशन है, फिर प्लस पुटअप करना है, 5y लिखना है, और यहाँ पे सेम ये ब्रैकेट, अंडरस्टूड। नाउ राइट डाउन 4x, ठीक है, इनटू, देखो कैसे करना है, ये वाले नंबर को इससे मल्टीप्लाई करना है, फिर इससे मल्टीप्लाई करना है, ओके। यू कैन डू दिस वे ऑल्सो, और यू कैन जस्ट पहले ये नंबर को इससे मल्टीप्लाई करो, फिर ये नंबर को इससे मल्टीप्लाई, देखो कैसे, 4x इंटू 9x प्लस, ठीक है, प्लस फिर से 4x लिखोगे, 4x इंटू 7y,
ठीक है, समझ गया। ये 4 को दोनों से मल्टीप्लाई करना है। फिर अगेन 5y, ओके 5y इंटू 9x, फिर अगेन प्लस डालो 5y इंटू 7y, ठीक है। नॉट फोकसिंग। अंडरस्टूड स्टूडेंट, अंडरस्टूड दिस। नाउ सी हाउ टू डू। 4 9s are how much student? 4 9s are 36, okay। 36x what will be there? स्क्वायर। क्यों स्क्वायर है? क्योंकि 2x है, ओके। अब प्लस 4x इंटू 7y। 4 7s are how much student? is 28, 28 x और y, ठीक है। तो x और y, फिर प्लस साइन, फिर 4 9s are अगेन 4 9s are is how much student? 45, ठीक है। y x, तो x y will write, ठीक है, एक ही मतलब। फिर अगेन पुट अ प्लस साइन एंड 5 7s are 35y स्क्वायर, ठीक है। नाउ सी, कोएफिशिएंट किसके सेम है उसको क्या कर सकते हो? ऐड कर सकते हो। ये एक्स स्क्वायर है, ये एक्स वाई, तो ये दोनों को हम ऐड कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि ये दोनों का कोएफिशिएंट सेम है, बट वाई स्क्वायर का नहीं है। तो इसको ऐड करो, इसको एज इट इज लिखो। 36x स्क्वायर प्लस 28 प्लस 45 इज हाउ मच स्टूडेंट? 73xy, सॉरी यहाँ पे 3 आएगा, 70, अगेन आई विल राइट 73xy, ठीक है। ये दोनों को प्लस किया। क्यों प्लस किया? क्योंकि इसके कोएफिशिएंट सेम है, बट स्क्वायर नहीं लिखेंगे हम इसमें, क्योंकि यहाँ पे ऐड कर रहे हैं, मल्टीप्लाई नहीं कर रहे हैं। कीप इन माइंड, एडिंग, वी आर डूइंग एडिशन, तो यहाँ पे स्क्वायर नहीं लिखेंगे। प्लस 35y स्क्वायर एज इट इज, ठीक है। अब यहाँ पे सेम आंसर मिल गया, 36x स्क्वायर प्लस 73xy प्लस 35y स्क्वायर, ठीक है। अंडरस्टूड स्टूडेंट दिस? आई होप यू ऑल अंडरस्टूड दिस। So student, now let us see second sum. A rectangle is 8x plus 5 centimeter long and 5x plus 3 centimeter broad. Find its area. Okay, so same question I had written in my notebook. As you can see here, the area of rectangle formula is length into breadth, ठीक है। तो उसका लेंथ इज, लॉन्ग मीन्स लेंथ 8x प्लस 5, ठीक है, जो लॉन्ग रहेगा वो लेंथ, एंड ब्रॉड मीन्स विथ और ब्रेथ। अंडरस्टूड दिस? सी वी गॉट ना। तो सेम अभी बाइनोमियल को मल्टीप्लाई करना है बाइनोमियल के साथ में, जो हमने फोर्थ सम किया था ना, दिस वन स्टूडेंट, सेम वे यू आर गोइंग टू डू दिस वन, ठीक है। फर्स्ट ये टर्म लेना है 8x, देन राइट दिस ब्रैकेट 5x प्लस 3, ठीक है, प्लस साइन 5, देन 5x प्लस 3। ये फर्स्ट हो गया स्टेप। नाउ यू कैन सी सेकेंड स्टेप, 8x इंटू 5x, ठीक है, ये दोनों इंटू, फिर से क्या करोगे यहाँ पे प्लस, और व्हाट यू विल डू स्टूडेंट? 8x इंटू, देन 8x इंटू हियर प्लस, वाई प्लस? क्योंकि यहाँ पे प्लस है, इसके लिए प्लस 8x इंटू 3, ठीक है। यहाँ का साइन मिस्टेक मत करना स्टूडेंट, जो यहाँ पे साइन रहेगा वही यहाँ पे भी साइन आएगा, फिर ये भी प्लस यहाँ पे सेम वही प्लस आएगा, ठीक है। अब 5 इंटू 5x, अब देखो यहाँ पे प्लस है ना, तो यहाँ प्लस डालो, 5 इंटू 3, समझ गया ये? अंडरस्टूड दिस स्टेप? ओके, नाउ what you have to do student, you are going to bring you are going to, what you are going to do, you are going to separate 8 into x into 5 into x, okay, plus 8 into x into 3
प्लस 5 इंटू 5 इंटू एक्स प्लस 5 इंटू 3. अभी साथ में टर्म लेकर आओ. सी what you will do, 8 इंटू 5x इंटू x. ठीक है, दिस इज easiest टू सी. देन 8 इंटू 3x. ठीक है, एक ही है तो इंटू x प्लस 5 इंटू 5 तो है तो सेम 5 इंटू 5 इंटू एक्स प्लस 5 इंटू 3. ना सी 8 5 ज़ा 40 एक्स स्क्वायर. क्यों? क्योंकि यहाँ पे दो एक्स हैं और मल्टीप्लिकेशन है, इसके लिए स्क्वायर. प्लस 8 3 ज़ा 24 एक्स, एक ही एक्स है. 5 5 ज़ा 25 एक्स, एक ही एक्स है. 5 3 ज़ा 15. ठीक है, अब यहाँ पे देखो कौन सा सेम है, ये दोनों कोएफिशिएंट वेरिएबल सेम है तो इसको हम क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं. तो 40 एक्स स्क्वायर प्लस 24 प्लस 25 इज हाउ मच, 49. एक्स ही लिखोगे, स्क्वायर नहीं लिखोगे क्योंकि यहाँ पे एडिशन है. मल्टीप्लिकेशन होता तो स्क्वायर आता. प्लस 15. दिस इज योर आंसर. ओके, सो हाउ यू विल राइट द आंसर स्टूडेंट? You are going to write the answer. Here I am writing because I am not having space here, so I will write here the answer. Okay, the area of rectangle, the area is 40x square plus 49x plus 15 centimeter square. Because we are finding area na, that is the unit is centimeter square. So I hope you understood this sum. Students, let us start with practice set 36. First sum. Simplify 3x minus 11y minus 17x plus 13y and choose the right answer. So these are the options. Among this you are going to choose the correct answer. For that we are going to solve this. Okay, subtract this. Why subtraction? Because in between there is a subtraction sign. ठीक है, तो we are going to subtract this binomial from this binomial. Okay, see how to do, students. See, so here I had written question, so directly I will solve here. Okay, because I have to choose the answer, so I am not using any step, I will solve it directly. 3x minus 17x. Okay, because x same variables I am taking together, minus 11y, and this plus will become minus 13y. Okay, so 3x minus 17 is minus 14x. Then minus this minus will be plus, but the sign will be of minus. Okay, so here I will put minus sign and I will do plus. Why? Because minus minus plus. So 11 plus 13 is 24y. अगेन नो स्क्वायर क्योंकि यहाँ पे सब्ट्रैक्शन है. ठीक है, अभी स्टूडेंट सी वी गॉट दिस, बट स्टिल ऑप्शन में ऐसा कोई भी ऑप्शन नहीं है. ठीक है, ऐसा कोई ऑप्शन दिख रहा है नहीं. तो अभी देखो आपको क्या करना है उसके लिए. ये 14 और 24 कौन से टेबल में जाता है? दोनों बेसिक स्मॉलेस्ट से देखेंगे. स्मॉलेस्ट इज 2, तो दोनों 2 के टेबल में जाता है. यस, तो 2 7 ज़ा एंड माइनस 2 12 ज़ा. ठीक है, ये दोनों भी पता चल गया. 2 7 ज़ा 14, 2 12 ज़ा 24. यहाँ पे x लिखो, यहाँ पे y लिखो. ठीक है, और यहाँ पे क्या आएगा आपका माइनस. अंडरस्टूड. लेकिन ये प्लस क्या हो जाएगा, ये माइनस क्या हो जाएगा स्टूडेंट, प्लस हो जाएगा. ओके, सी, so we got that. So
कौन सा ऑप्शन है, कौन सा है, फोर्थ वन. ओके, सो फोर्थ वन इज करेक्ट. फोर्थ, विच वन, फोर्थ वन इज द आंसर. Student, now see second one. The product of 23x square y cube z and minus 15x cube y z square is. Okay, product. It has been asked. Product means multiplication. So basically 23 into 15 is how much, student? When we multiply this two is 345. Okay, 345. लेकिन 345 इसमें भी है, इसमें भी है. टू ऑप्शंस आर देयर विथ 345. ओके, नाउ तो सेकेंड थिंग व्हाट वी विल सी. फर्स्ट वी सॉ कि 345 आएगा, तो फर्स्ट या तो सेकेंड, ये दो चीज़, दोनों ऑप्शन में से कोई एक ऑप्शन है. सेकेंडली आर गोइंग टू सी अबाउट वेरिएबल्स. एक्स स्क्वायर और क्यूब, तो कितना हो जाएगा, स्क्वायर और क्यूब कितना हो जाएगा, 5. ठीक है, हाउ मच, 5. तो x 5 होगा, y क्यूब एंड y, तो y कितना होगा, 4. ठीक है, देन z एंड z स्क्वायर, तो ठीक है z क्यूब होगा. ठीक है, तो हमारा वेरिएबल क्या होगा, x 5 y 4 और z क्यूब. ठीक है, तो ये x 5 y 4 एंड z क्यूब, तो ये फर्स्ट वाला हो रहा है मैच. लेट अस सी फॉर सेकेंड ऑल्सो. x square, तो but obvious this is not there, so first is the answer. Understood what to do? Product, if it is asked product, तो 23 into 15 is 345, ये पता चल गया. देन लेकिन दो जगह पे है, दो ऑप्शन है 345, तो what we will do, we will see the variables. ये variables को just do the multiplication, you will get that. Okay, understood student? Student, now let us see third sum. Student, one more sum I will do for you is fifth one. Okay, see 2x 2. Student, now let us see third sum. Solve the following questions. Okay, solve the following equations. First I have written here, this is the simplest one. Student, देखो क्या करना है, यहाँ पे ये वेरिएबल्स के साथ है ना, तो राइट डाउन लाइक दिस. ठीक है, फिर इक्वल्स टू डालो और यहाँ पे ये वाला कोएफिशिएंट लिखो, नंबर लिखो 9/2. अभी देखो यहाँ पे कौन क्या साइन है, प्लस है, तो जब ये वाला नंबर यहाँ पे आएगा, ओके, शिफ्ट होगा, तो ये प्लस का एडिशन का क्या हो जाएगा, सब्ट्रैक्शन. सो सब -1/2. ठीक है, लाइक टर्म्स को हमने साथ में रखा. ठीक है, ये वाले को यहाँ पे शिफ्ट किया. ना एज यू कैन सी 4x इज इक्वल्स टू, दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, तो 9 - 1/2 एक ही बार लिखना है. ठीक है, 4x इज इक्वल्स टू 9 - 1 इज 8/2. अभी ये दोनों कट होगा, एक ही टेबल में जाएगा, ये 2 के टेबल में 8 जाएगा. येस, तो 2 1s are 2 4s are. सो 4x इज इक्वल्स टू 4. अब क्या करना है स्टूडेंट, देखो देयरफॉर ये x अभी ले लो यहाँ पे. ठीक है, ये 4 जब यहाँ पे जाएगा तो क्या होगा, डिवीजन में आएगा. ठीक है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में है. एज यू कैन सी, मैंने बोला था जब यहाँ पे कुछ भी नहीं रहेगा दैट मीन्स अ मल्टीप्लिकेशन इज देयर, तो ये मल्टीप्लिकेशन में है, तो ये यहाँ पे जाएगा तो 4/4 डिवीजन होगा 1. तो आंसर x इज इक्वल्स टू 1. आई होप यू अंडरस्टूड दिस स्टूडेंट. Student, one more sum I will do for you is fifth one. Okay, see 2x 2 bracket x minus 4 is equals to 4x plus 2. Okay, now first multiply this. 2 into x is 2x minus 2 4s are 8. Okay, is equals to 4x plus 2. अब मैंने क्या बताया तुमको, शिफ्ट करना है. ओके, देयरफॉर अभी देखो शिफ्ट कैसे करना है. ये 2x यहाँ पे ही रहेगा, यहाँ पे कुछ भी साइन नहीं है, मतलब प्लस है, तो ये साइड में आएगा तो क्या हो जाएगा, एडिशन. ओके स्टूडेंट,
इक्वल्स टू ये +2 यहाँ पे ही है, यही साइड में, तो +2 ही रहेगा। ये -2 यहाँ पे, -8 यहाँ पे आएगा तो क्या हो जाएगा +8। ठीक है, अंडरस्टूड नाउ। देयरफॉर 2x - 4x इज -2x। ठीक है, और ये हो जाएगा 10। अब यहाँ पे ये मल्टीप्लिकेशन में यहाँ पे जाएगा तो डिवीजन में आ जाएगा। ओके, सो x इज इक्वल्स टू 10/2। ओके, एंड वेयर विल बी द माइनस साइन स्टूडेंट? माइनस साइन विल बी ऑफ 2। ठीक है, 2 1 जा 2 5 जा, क्योंकि 10 2 के टेबल में आता है। देयरफॉर x इज इक्वल्स टू -5। Understood how I did? Okay, now student, I want you to do practice set 35 entire sum। ठीक है, फर्स्ट का भी, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ सेकेंड, देन 36 फर्स्ट सम, सेकेंड सम एंड थर्ड सम, एंटायर सम। ओके, so student, today we will stop here. I hope you understood practice set 35 and 36 first, second and third sum. Student, in my next video I am going to teach you sum number 4, 5, 6 and 7 of practice set 36. So student, if you have any doubt, you can just message in the group or mention your doubt into the comment section. So student, if you like my video and you want me to make such educational video, please do like, share, and if you haven't subscribed my YouTube channel, then subscribe it. Thank you.